हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਸਿੰਪਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡਿਸਸਿਮਿਲਰ ਸੈਲਸ। ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ, ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਐਂਡ ਸਕਲੈਰਨਕਾਈਮਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਮਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜ਼ਾइलम ਐਂਡ ਫਲੋएम। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲੋएम ਟਿਸ਼ੂ। Now phloem tissue which is the complex permanent tissue and phloem term coin ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਗੀਲੀ ਨੇ। ਨਗੀਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ term ਦਿੱਤੀ ਸੀ phloem, but ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੈਪਟੋਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈਪਟੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ term ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈਬਰਲੈਂਡ ਨੇ and ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਗੀਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ term ਦਿੱਤੀ phloem। Now, as phloem is the complex permanent tissue, it means it is the group of dissimilar cells. Group of dissimilar cells which together perform common function. और function की है conduction of food, transport of food. पत्ते एक मेन साइट है लीव्स जिन्हां दे विच मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करते हैं और उस तो बाद उस फूड नू पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करन दा काम फ्लोएम टिश्यू दा है। नाउ जे असीं कहा कि ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स, तो किन्ने तरह के सेल्स ने? दीज सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। सो इट इज द ग्रुप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। वो केड़े 4 तरह के सेल्स ने? नंबर 1 सीव ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, number 3 phloem parenchyma and number 4 phloem fibers। ना बच्चे मैं पहला ही हाईलाइट करता कि जेडे sieve tubes ने, companion cells ने, phloem parenchyma है, these all are living cells, but phloem fibers, again fiber term आ गई। now these are dead cells और फाइबर का काम में की क्या सी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नाउ पैरेनकाइमा, ता पैरेनकाइमा का सब तो मेन फंक्शन की है स्टोरेज ऑफ फूड, पर लोड पैन ते यह दूसरिया चीज़ों नू जिवें कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, टैनिन, रेजिन, गम्स इन्हां नू भी स्टोर करदे आ। सो पैरेनकाइमा का काम सानू पता है स्टोरेज ऑफ फूड, फाइबर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो जो मेन काम है कंडक्शन ऑफ फूड, वो किहदे लई बचिया? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। तो हुण आपां मेनली इन्हां दोनों सेल्स के ऊपर ही फोकस करांगे। नाउ नंबर 1 सीव ट्यूब्स। ट्यूब्स आर ऑलवेज इलोंगेटेड। तो ये भी एक लंबियां ट्यूब्स ने जो किहड़े सेल्स तो बनिया हुई ने? सीव ट्यूब सेल्स। और बच्चे कई बार सेल लई टर्म एलिमेंट भी यूज की जाती है। सो these sieve tubes are formed by sieve tube elements or cells. Now these cells are placed one upon each other to form a elongated tube. Now which is second important point, very important, that in case of sieve tubes nucleus is absent। now बच्चे किसी भी सेल का एक इंपॉर्टेंट करैक्टर हुंदा है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल, ताइयों असीं उहनूं लिविंग मन्नांगे जे न्यूक्लियस प्रेजेंट आ। बट बच्चे एक्सेप्शन आ कि दो ऐदां दे सेल्स ने जो कि लिविंग ने बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वो केड़े दो सेल है? वन इज आरबीसी जो कि साडी एग्जाम्पल है RBC, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरी एग्जाम्पल है सीव ट्यूब्स। नाउ दीज आर लिविंग सेल्स बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। फर्दर, नाउ these cells have oblique or transverse bulged end walls। now what is end wall? wall present between two cells। हुण मैं की कह कि एक सेल दे ऊपर दूसरा सेल लग्या होया है, तो दो सेल्स के विचाले जिहड़ी वॉल है, एंड वॉल है, दैट इज बल्ज्ड आउट। नाउ ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है, ऑब्लीक भी हो सकती है। तुसीं देख सकते हो डायग्राम दे विच मैं ऑब्लीक
एंड वॉल बनाई है जो कि बल्ज हुई हुई आ, ठीक है, having sieve pores. Now you can see pores are present and these end walls, these are covered by the callus layer, having layering of callus. ਤਾਂ callus ने ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ layering ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. Now this specific structure is known as sieve plate. ठीक है जी. Now this is the end wall, which one is bulged out. This is the oblique having pores covered by callus, and this specific structure is known as sieve plate. Now this is the sieve tube. Nucleus is absent, having pores covered by callus and known as sieve plates, only at end walls. Further, in case of gymnosperms, sieve tube cells remain separate. So it is the specific characters of angiosperms. जैसे जिम्नोस्पर्म्स की गल करिए तो उन्हां दे विच ट्यूब्स नहीं बनदियां. These cells remain separate. Now second type, that is the companion cells. Now बच्चे दा नाम ही दस रहा है, companion means company or you can say friend. But किदा companion आ, किदा friend आ या किनू company दे रहा है, that is the sieve tube. ठीक है, जिस दी companion of sieve tube. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ sieve tube ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, this is the elongated cell ਜਿਹਦੀ shape square ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, but ਮੈਂ rectangular shape draw ਕੀਤੀ ਆ, but ਇਹ square ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ sieve tube ਦੇ ਨਾਲ attached ਹੈ. And it is also connected with sieve tube with the help of plasmodesmata. मैं लास्ट लेक्चर च भी दसिया सी plasmodesmata. कोई भी दो प्लांट सेल्स आपस दे विच कम्युनिकेट करन लई केड़ी स्ट्रक्चर यूज करदे आ, plasmodesmata. नाउ ये दो सेल्स भी इकट्ठे पए ने, दोनों कम्युनिकेट करदे आ with the help of plasmodesmata. Further, companion cells have dense cytoplasm. You can see having dense cytoplasm and nucleus is present. In case of sieve tubes, nucleus is absent, but in case of companion cell, nucleus is present. Now बच्चे इत्थे ही रोल है companion cell का. हुण जिहड़ी कंडक्शन ऑफ फूड है या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो करना तो sieve tube नहीं है. काम किने करना है, sieve tube ने. बट ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, न्यूक्लियस है. बट न्यूक्लियस किदे कोल आ, कंपेनियन सेल को. सो एक्टिविटीज या फंक्शन या कंडक्शन ता sieve tube ने करना है, बट ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ कंट्रोल किदे कोल है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स. तो ਜਿਹੜੇ कंपेनियन सेल्स ने इन्हां कोले न्यूक्लियस प्रेजेंट आ और यही न्यूक्लियस सारियां एक्टिविटीज जो कि sieve tube परफॉर्म कर रहा है उन्हां नू कंट्रोल करदा है. एंड सेकंड मेन फंक्शन, जनरेट प्रेशर ग्रेडियंट. हुण जे sieve tubes विच दी असी खाना पास करना है ना बच्चों, खाना जिहड़ा हैगा that is in the form of glucose. सानू भी पता है प्लांट्स जिहड़ा फूड प्रोड्यूस करते हैं that is in the form of glucose. तो सब तो पहला वो ग्लूकोस पानी दे विच मिक्स हुंदा है. पानी दे विच मिक्स होने तो बाद वो sieve tubes दे थ्रू जिहड़ा है ट्रांसपोर्ट किया जाता है. बट हुण जे खाने नू sieve tubes दे थ्रू कंडक्ट करना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो उहदे लई की जनरेट करना पऊगा, प्रेशर ग्रेडियंट. कोई भी चीज़ आ सानू भी पता है it always flow from high pressure to low pressure or you can say from high concentration to low concentration. बट ये लिए प्रेशर जनरेट करना, प्रेशर ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है. हुण वो प्रेशर ग्रेडियंट भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कौन जनरेट कर रहा है, अगेन न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स. तो दा नाम ही दस रहा है, कंपेनियन मीन्स जिन्हें कंपनी देनी है. किवें कंपनी देनी है, बाय कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ sieve tubes. Second, generate pressure gradient for conduction of food. Further, sieve tube cells and companion cells
आर दी सिस्टर सेल्स। ठीक है जी, बोथ आर दी सिस्टर सेल्स। क्यों? बिकॉज उन्हों का ओरिजिन कॉमन है, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी सेम मदर सेल। ठीक है जी, उन्होंने इको ही सैल तो दोनों ने ओरिजिन किया अपना, इको ही सैल तो दोनों बने आ। और फर्दर बचे जे इन्होंने दोनों सैल चों एक दी डेथ हो जाती है तो दूसरा अपने आप ही डाई हो जाता है। सो दीज बोथ आर दी सिस्टर सेल्स। जेनेटिक मेकअप सेम आ, इको ही मदर सेल तो दोनों बने ना। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट मैं वैसे इतने स्टार्ट ना कि उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, क्यों? क्योंकि बच्चे यह नीट एग्जाम के क्वेश्चन आ चुका है कि जिम्नोस्पर्म्स दे विच कंपेनियन सेल का काम कौन करता है। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स दे विच बच्चे कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। जिम्नोस्पर्म्स दे विच कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे, तो फिर जो काम कंपेनियन सेल करता है वो जिम्नोस्पर्म्स दे विच कौन करता है, दैट इज दी एल्ब्यूमिनस सेल्स। ना मुझे यही नीट एग्जाम का क्वेश्चन सीगा जिसका आंसर सी एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स companion cells are absent, instead of companion cells albuminous cells are present. Now next phloem parenchyma, मैं ड्रॉ किया है phloem parenchyma, you can see in diagram जिसका काम की है storage of food, resin, tannin, gums and so on, and which is second is the role as slow conduction of food। ਜਦੋਂ फूड की स्लो कंडक्शन करनी होंगी आ उस टाइम भी फ्लोएम पेरेन्काइमा यूज किया जाता है। नाउ फ्लोएम पेरेन्काइमा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली डाइकॉट्स। इट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ डाइकॉट्स, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स दे विच फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है, सिर्फ डाइकॉट्स का ही करैक्टर है। नाउ लास्ट इज द फ्लोएम फाइबर। Fiber means mechanical strength, but it is only present during the secondary growth। जदों secondary growth हुंदी आ उस दौरान फ्लोएम फाइबर बनता है, but it is absent during the primary growth। ना बच्चे इहदे नाल अपना फ्लोएम टिश्यू कंप्लीट आ। Now further we will study about the xylem, which is also the second complex permanent tissue। Now next complex permanent tissue is xylem। Now xylem term भी नगीली ने ही coin की सी, but इस तो पहला इहदा नाम सी हेड्रॉम। हेड्रॉम term हैबर्टलैंड ने दी सी। Now xylem is also the group of dissimilar cells which together perform common function, and that function is conduction of water and mechanical strength। तो xylem tissue दो फंक्शन परफॉर्म करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर दैट इज मेन फंक्शन, बट इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फर्दर ग्रुप ऑफ dissimilar cells, so it is the group of 4 types of different cells। number 1 tracheids, number 2 vessels, number 3 xylem parenchyma and number 4 xylem fibers। ना बच्चे जिहड़े ट्रैकीड्स ने वो मेजर कंडक्शन जिहड़ी है जिम्नोस्पर्म्स दे विच करवाउंदे आ, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स जिहड़ी मेजर कंडक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय वेसल्स। नाउ xylem parenchyma, parenchyma अगेन लिविंग सेल्स जिन्हां दा फंक्शन की हुंदा है, स्टोरेज ऑफ फूड। xylem fiber, fiber means mechanical strength। सो इत्थे भी अपने कोल दो ही मेन सेल्स बचते ने, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। नाउ नंबर 1 ट्रैकीड्स, दीज आर डेड सेल्स, नैरो, हाईली लिग्निफाइड। आपा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जिथे सेल्स कीते सी उत्थे भी यही फीचर कीता सी कि दीज आर डेड एंड हाईली लिग्निफाइड। सो ट्रैकीड्स आर आल्सो डेड हाईली लिग्निफाइड सेल्स जिन्हां दी शेप ओवल, राउंड, इलोंगेटेड हो सकती है। बट बच्चे हुण जे लिग्निफाइड आ, जे पूरी तरह नाल ही सैल लिग्निफाइड हो जाऊगा तो पानी किवें ट्रांसपोर्ट करूगा। सो जिहड़ी थिकनेस है वो पूरे दे पूरे सैल दे ऊपर या पूरे दे पूरे ट्रैकीड्स नू कवर नहीं करती, एंड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस
ट्रैकीड्स अलग-अलग टाइप्स ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਐਨੂਲਰ, नंबर 2 spiral, number 3 scleriform, number 4 reticulate, and number 5 pit. Now these are the types of tracheids on the basis of thickness. Annular, thickness is in the form of annual rings. Number 2 spiral, thickness is in the form of helices. Number 3 scleriform, thickness is in the form of transverse band. Now you can see in diagram the thickness is ladder like. जो ladder वर्गी अपने को thickness बनती है, that is scleriform. Now next reticulate, when thickness is in the form of network, पूरा जाल बिछा होवे ਤਾਂ उसदा ਦੀ structure ਨੂੰ ਅਸੀਂ reticulate ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Now last is pit. Now what is pit? ਜਦੋਂ thickness uniform ना हो, for example this bow thickness ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ, but ਕਿਸੇ specific area ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ thickness ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ thin ਕਰ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ create ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, cavity. Now that is known as pit. ਹੁਣ pit ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ simple, ਇੱਕ border. ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲ. ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੈਲ. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਸ ਕੈਵਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚੇਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਆ, then it is known as simple pit. देखो डायग्राम साडे कोल बनी हुई है सेम width, जितनी ऊपर width है उतनी ही width होदी अंदर नीचे जाके भी है. Second is border. Now bordered pit ਦਾ मतलब है flask shape. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਵਿਟੀ ਦਾ ਨੈਰੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬ੍ਰੌਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, then it is known as border pit with narrow aperture, broad base. Simple pit, same width. ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tracheids ਜਾਂ types ਜੋ ਕਿ dead cells ਨੇ, lignified ਨੇ, अलग-अलग टाइप्स ने ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस और मेजर फंक्शन की विच परफॉर्म करते हैं जिम्नोस्पर्म्स. नाउ नेक्स्ट इज वेसल्स. नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. नाउ दीज आर elongated, broad, highly lignified. Highly lignified, it means dead. Again, just like a sclerenchyma, these are dead, highly lignified cells. ना मुझे सेल्स की कर दिया एक दूजे के ऊपर अरेंज होके लंबिया लंबिया वैसल्स तैयार कर दिया which are closed at either end. Now ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि एक सेल के ऊपर दूसरा सेल अरेंज होके लंबी वैसल बनी आ ਤਾਂ क्रॉस वॉल्स किदां ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, मींस वॉल बिटवीन टू सेल्स. तो क्रॉस वॉल्स ऑब्लिक या ट्रांसफर हो सकਦੀਆਂ ਨੇ, बट किसी किसी केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ क्रॉस वॉल डिफ्यूज हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. अगेन वही चीज़ है बच्चे, हाईली लिग्निफाइड सैल आ, जे उन्होंने सारे सैल्स ही लिग्निफाइड होंगे तो विचों दी पानी कितना पास होगा, सो थिकनेस इको जी नहीं होगी. तो उन्हें की किया, या तो अपन क्रॉस वॉल्स नू डिफ्यूज कर लिया, खोर लिया. यू कैन सी क्रॉस वॉल्स आर डिफ्यूज. जो नहीं डिफ्यूज हुई तो थिकनेस अगेन इन्होंने जो किसी एक टाइप की होगी, या तो इन दी फॉर्म ऑफ एनुअल रिंग्स, या फिर हेलिकल फॉर्म, या फिर ट्रांसवर्स बैंड, या फिर नेटवर्क की फॉर्म्स, या फिर पिट्स बनाओगी ना बच्चे. जे क्रॉस वॉल्स डिफ्यूज हो गई दैन इट इज नोन एज सिंपल परफोरेशन. जे क्रॉस वॉल्स डिफ्यूज नहीं हुई किसी एक तरह की साडे कोल थिकनेस प्रेजेंट आ, दैन इट इज नोन एज मल्टीपल परफोरेशन. नाउ जी इस डायग्राम दे विच मैं दो तरह की थिकनेस शो की है, रेटिकुलेट एंड लैडर. जे मैं इत्थे पिट भी बना दा, दैन इट इज नोन एज मल्टीपल परफोरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनेस. बट इन दिस केस देयर इज नो certain kind of thickness.
Instead of that, cross walls are diffuse, then it is known as simple perforation, and this is the multiple perforation. And perforation ਜਿਹੜਾ word ਆ ਉਹ pores ਲਈ ਹੀ use ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ for the shape. Now this is very important part ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਸਟੈਮ ਡਾਈਕॉट ਮੋਨੋਕॉट ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਕॉट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਲਸ ਜਾਂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਲ ਔਰ ਡਾਈਕॉट्स ਲਈ ਐਂਗੂਲਰ ਤਾਂ ਮੋਨੋਕॉट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਓਵਲ ਡਾਈਕॉट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ना बच्चे मैं इत्थे जिहड़ी है उन्होंने लिग्निन जिहड़ी हैगी है सेकेंडरी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन वो शो की हुई है हाईली लिग्निफाइड सेल्स में शो किए हुए हैं नाउ नेक्स्ट इज जाइलम पेरेन्काइमा दीज आर लिविंग सेल्स जिन्होंने मेन काम स्टोरेज ऑफ फूड रेजिन टैनिन बट सेकंड फंक्शन दे आल्सो हेल्प इन लेटरल कंडक्शन जदों पानी की लेटरल कंडक्शन करनी हुंदी आ उदों भी इन्हां नूं वरतिया जांदा है Now next is xylem fiber. Now fiber की काम है mechanical strength and again dead cells. Now libriform fiber and tracheid fiber. ਤਾਂ xylem ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ fibers ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ libriform ਤੇ ਇੱਕ tracheid fiber. Libriform मतलब true fibers. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ fiber ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ हाईली लिग्निफाइड हाईली थिकेंड ने और सिंपल पिट्स प्रेजेंट ने पर ट्रैकीड्स फाइबर का मतलब है कि ना तो पूरी तरह नाल फाइबर बन सके ना ही ये पूरी तरह नाल ट्रैकीड्स ने बल्कि ट्रैकीड्स से फाइबर का विचाला रह गए इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रैकीड्स एंड फाइबर नाउ दीज आर कंपैरेटिवली लेस थिकेंड इहदे जिन्नी थिकनेस नहीं है बट हैविंग बॉर्डर पिट्स तो इस केस दे विच बॉर्डर पिट है इन्हां कोले सिंपल पिट है ना बच्चे दे नाल साडे फ्लोएम ते जाइलम दोनों टिश्यूज कंप्लीट ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कंप्लीट आ ते इहदे नाल साडे कोल प्लांट्स दे दोनों ही टिश्यूज वाला टॉपिक कंप्लीट हुंदा है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट नाउ फर्दर आपां स्टार्ट करना है हुण टिश्यू सिस्टम कि प्लांट्स के अंदर किन्ने तरह का टिश्यू सिस्टम पाया जाता है वो किमें फंक्शन परफॉर्म करता है एंड आफ्टर दैट आप फिर रूट स्टैम जी हैगी है मोनोकॉट डाइकॉट उन्होंने स्ट्रक्चर्स देखांगे लीव्स दी स्ट्रक्चर्स देखांगे थैंक यू स्टूडेंट्स।